Okay, I think we will start now, and a little bit later, I will check attendance. It will be obligatory, our rule for checking attendance every practicum class. It will be important, because I will calculate your attendance too, and I also will check, give you some short task every practicum class. Maybe this task will be connected with some our previous work. And based on this result, I also will calculate your final marks. Okay. What the topic will be? Topic will be Biuret reaction, and use the Biuret reaction in the identification of proteins. For this reason, please focus for available for our work. As you see in the screen, when we're talking about Biuret reaction, we must remember that Biuret reaction, it's a specific chemical reaction where copper will play a role, will be critical important component of this reaction, and copper will give possibility to create specific linkages between copper and some compound nitrogen in the peptide bond. This reaction specifically focused to identify, to recognize peptidic bond in the solutions. And as you remember, peptidic bond is one of the important component of the proteins. Peptidic bond not present in the amino acids, yeah, but present in proteins, peptides, dipeptide, 3-peptide, and some other component will be available. And we can talk about this situation. We can talk about, for example, Biuret test for peptidic bond, identification of peptidic bond. As you remember, what's mean peptidic bond? Peptidic bond was created, produced after connection between two amino acids. It will be hydrolysis reaction and connection of amino acids will be from one side, from the C, and it will be carboxyl group. Carboxyl group, OH part of the carboxyl group will connected with the one hydrogen from the amino group. Yeah, and this connection give us will be released water, and will be released two amino acids will be added in the one line, in the one chain. And as you see here, during the connection between two amino acids and produce peptide bond, our linkages, our connection give us possibility to change some. This connection give us possibility to change a little bit electronical density, electrons density around nitrogen, and nitrogen was charged by negatively, because some electrons will be present, will be removed, will be migrate from the oxygen to the nitrogen. And these properties of the proteins give possibility to see us from reaction some specific identification tests like a Biuret test. When we're talking about this reaction, we must focus also for some specific and important reaction. The specific and important reaction will be between also peptide copper complex and base, because it's very important that this
chemical reaction will be possible only in the strong based environment. For strong based environment, we can use, for example, potassium hydroxide or sodium hydroxide. As you see in the screen, when we use, for example, sodium hydroxide, it gives possibility to organize the connection of peptide copper complex with some atoms of some ions of sodium, for example. Two ions of sodium will be added with this complex. Yeah, if you see, because sodium will be charged, it's one valency compound will be charged positively, and all this complex, copper peptide copper complex, because you see we have a 4 nitrogen. Yeah, but if you remember, copper have only 2 valence, it's positively charged 2. It means this complex will be extra negatively charged, and 2 it will be charged and valency -2. Yeah, it's valency 2, and one ion of sodium will be charged +1, and if we use 2 sodium ions, it will be stabilized. Yeah, it's very important. Remember about specific strong based condition, strong based condition. Yeah. When we're talking about this reaction, we must remember that it's a Biuret test will be possible, will be visible for us if blue color will change to the purple color. You can see in the screen that, for example, copper, for this test we will be use copper sulfide. Copper sulfide have a specific blue colored complex, blue colored solution. If we will add this blue colored solution to solution with the protein, color will change to the purple. Yeah, I think you can. I think you see different, and this difference gives you chance to recognize, to identify of some proteins in the solution. Yeah, and what else we can see here? And some it's just repeated. If you see purple color, deep purple color, it means we're talking about positive result of the test. If color will not change, if color will be blue as in the beginning, it means that here we're not talking about proteins absent in this solution. Yeah, I think it's understandable. Okay, for next stages, I recommend you focus your attention to some recorded points about this reaction in the Moodle platform. As you remember, in the Moodle platform, we have some specific information, and this specific information gives us possibility to some specific video give us possibility to see some reaction. Yeah. Okay. Let's start. Okay. What happened? This one.
The first, I want to focus your attention to some sources for Android, for your cell phone. You can find some medical biochemistry book, sir? Yes, sorry. Book? Yes, it's book. Yes, it's some information and some book about biochemistry. It's not, of course, very detailed, but it's very useful for medical biology, for medical biochemistry reason. Yeah, please, it's up to you. It's just additional information. Maybe it will be useful for you. Okay, and when we're talking about our topic today, the first I want to recommend you join and look through this link. It's online lab of virtual lab of biochemistry. And this concrete link will be focused to the proteins and some recognizing of use some specific test of recognizing of proteins. I think it will be useful for you for Edman reaction for proteins sequences. You can use it. And what else, Eric? Also, we today will be look through this video, and we will start from this one. Aim: to detect the presence of proteins by BioRed test. Step 1. Take 2 ml of protein solution, that is, milk or albumin of egg, in a test tube. Step 2. Add 1 ml of 40% NaOH solution. Step 3. Add 2 drops of 1% CuSO4 solution. Step 4. A violet color indicates the presence of proteins. Okay, let's see some next video. It's very general, and a little bit later we will talk about more detailed points. It's just general. Egg white contains a lot of protein. The test for protein is called the Biuret test. This involves adding some sodium hydroxide solution, then running some very dilute copper sulfate solution down the side of the tube. At the top of the mixture, the colour change to mauve shows that protein is present. So which of these will test positive for protein? Bread in tube 1, nuts in 2, and grape juice in 3. Both the bread and nuts contain protein. Which contains more? Okay, some more video about this one. Experiment 106. The Biuret test for proteins. The Biuret test is an analytical procedure to identify soluble proteins in solutions. To perform this test, we need a protein solution, sodium hydroxide 10%, and a diluted solution of copper sulfate.
Watch how a 10% solution of sodium hydroxide can be prepared. As this base is conditioned as pellets, it's very difficult to weigh a fixed amount due to the pellet's lack of uniformity. After a certain mass is weighed, add distilled water until you reach 10 times the mass of the weighed base. So, you get a 10% solution of natrium hydroxide. Handle carefully the sodium hydroxide as it is very caustic. When preparing the copper sulfate solution, take in account its crystal water content. Weigh 0.78 grams of copper sulfate pentahydrate to have 0.5 gram of salt dissolved in 50 gram of solution. Separate in 2 beakers an egg yolk of its white. Dilute both with water to make protein solutions. Stir them to ensure homogenization. Filter both mixtures. You may envisage the preparation of a protein solution from bread. Another soluble protein you might analyze is a solution of gelatin. Milk is also suitable for the burette test as it contains casein, a water-soluble protein. To test the presence of a protein, take in a test tube 3 ml of a sample solution. Add the same amount of the 10% sodium hydroxide solution. Add a few drops of the 1% copper sulfate solution. Shake it to homogenize the mixture. If a violet color is seen, this is an indication that the analyzed solution contains a soluble protein. Repeat the procedure with egg yolk solution.
The violet color is seen even if the sample is yellow. Milk also gives a positive reaction for the burette test. Gelatine is also obviously reacting as a color change is observed. The violet color is due to the formation of a square planar copper complex with the amino groups involved in the peptide bonds, the complex being called burette. As the solutions contain copper, it is advisable to discard them in container used to collect less toxic inorganic waste. Okay, and some video will be in Urdu, I think. Oh, sorry, in the Hindi. I think it will be understandable for you. Let's start to see. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री विद डॉक्टर पीके प्रभाकर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टेस्ट है, दैट इज बायोरेट टेस्ट उसको हम बोलते हैं। और ये टेस्ट हम करते हैं नॉर्मली प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के डिटेक्शन के लिए। प्रोटीन और पेप्टाइड कहने का मतलब कि जहाँ भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा उसके लिए हम बायोरेट टेस्ट करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन कुछ नहीं है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबा सा चेन बनाते हैं, जिसमें जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, और उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते कैसे हैं? तो ये हमारा एक अमीनो एसिड है, जिस अमीनो एसिड्स में हमारा एक COH ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है। तो पेप्टाइड्स बॉन्ड बनाने के लिए एक अमीनो एसिड्स का COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाइंड करता है, बॉन्ड बनाता है दूसरे अमीनो एसिड्स के NH2 ग्रुप के साथ विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, सो इट इज ए डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शन यू कैन कॉल इट, और दोनों जुड़ जाते हैं तो कंडेंसेशन। सो इट इज ए काइंड ऑफ कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है, दिस बॉन्ड इज ए पेप्टाइड बॉन्ड जो बनाता है दो अमीनो एसिड के बीच में। सो दिस पोर्शन इज पार्ट ऑफ वन अमीनो एसिड एंड दिस इज पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। सो दोनों अमीनो एसिड जुड़े होते हैं एक बॉन्ड से, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये रिएक्शन जो है वो डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब बायोरेट टेस्ट होता क्या है? इस बायोरेट टेस्ट का अल्टरनेट नेम है, एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोवस्की टेस्ट। ये टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो
अगर अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ तभी ये टेस्ट पॉजिटिव रिएक्शन देता है, अदरवाइज ये टेस्ट नेगेटिव देता है। इस टेस्ट को हम यूज करते हैं दो तरह से, क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए भी और क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए। क्वालिटेटिव टेस्ट मीन्स जस्ट टू पता लगाने के लिए कि प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं और नहीं है। और क्वांटिटेटिव जहां हम मेजर करते हैं एग्जैक्ट कंसंट्रेशन फिक्स प्रेजेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स। तो इसकी जो लीनियरिटी है इस टेस्ट की वो होती है 5 से लेकर के 150 mg/ml तक की हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट कोई भी सिंगल अमीनो एसिड्स नॉर्मली नहीं देता है, सो इट इज नॉट गिवन बाय एनी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स अलोन। जब दो अल्फा अमीनो एसिड्स ज्वाइन हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से तभी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नहीं देते हैं। सिर्फ एक अमीनो एसिड्स है जो वो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जो है हिस्टिडीन। सो हिस्टिडीन इज द ओनली अमीनो एसिड व्हिच गिव्स यू पॉजिटिव बायोरेट टेस्ट। अब बायोरेट क्या होता है? नॉर्मली ये हमारा एक यूरिया कंपाउंड, अगर नाम से आप देखेंगे तो नाम से सजेस्ट होता है इसे बाय मीन्स दो, यूरिएट मीन्स यूरिया, यूरिएट कम्स फ्रॉम द यूरिया। तो दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। दो यूरिया मॉलिक्यूल्स को जब हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो दोनों कंडेंस जुड़ जाते हैं विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया। यहाँ से H और NH2 निकल जाते हैं तो एक बनता है NH2CONH2, ये मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं बायूरेट। स्ट्रक्चर ऑफ बायूरेट का अगर आप देखेंगे तो हमने जो पेप्टाइड बॉन्ड देखा था जहाँ CONH2 का पेप्टाइड बॉन्ड था, तो ये स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली सिमिलर होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। तो इसीलिए बायूरेट का बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड्स की तरह ही रिएक्शंस होते हैं। ये हमारा पेप्टाइड्स है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पोर्शंस और ये पोर्शन ऑफ बायूरेट इज एग्जैक्टली सेम। जहां भी CO और NH के बीच का बॉन्ड होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है। तो सिमिलरली ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है बायूरेट के। तो बहुत सारे रिएक्शंस बायूरेट जो देते हैं वो हमारे पेप्टाइड्स वाले रिएक्शंस ही होते हैं। बायोरेट टेस्ट के लिए जो हमारी जरूरत होती है, हमें जो चाहिए होता है, सबसे पहले हमें एक टेस्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है। वो टेस्ट सॉल्यूशन प्रोटीन्स का होगा। लैब में, बायोकेमिस्ट्री लैब में नॉर्मली जो प्रोटीन सॉल्यूशन हम बनाते हैं टेस्ट के लिए वो होता है बोवाइन सीरम एल्बुमिन, जिसको हम बोलते हैं BSA। तो BSA का सॉल्यूशन एक चाहिए हमें। फिर चाहिए हमें बायोरेट रिएजेंट। रिएजेंट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें होता है कॉपर +2 सल्फेट, ये नॉर्मली पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में होता है, 5H2 इसके साथ होते हैं। दूसरा होता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, इसको हम कॉमन फॉर्म में एलएम भी बोलते हैं या फिर रॉकेट सॉल्ट भी बोलते हैं। तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कली होता है। चौथा पोटेशियम आयोडाइड। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोरेट रिएजेंट के। हम आगे देखेंगे कि कैसे बनाते हैं और क्या क्या कितनी कंपोजिशन क्या होती है। फिर हमें चाहिए डिस्टिल वाटर। वाटर बाथ की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं 37 डिग्री के लिए, अदरवाइज नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ड्राई टेस्ट ट्यूब और पाइपेट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे बायोरेट रिएजेंट बनाते क्या हैं। तो रिएजेंट का कंपोजिशन क्या क्या है। तो हमें कॉपर सल्फेट चाहिए जो पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है 1.5 ग्राम। देन हमें चाहिए रॉकेल साल्ट, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट 6 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 1 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन चाहिए 300 ml, एंड फाइनल वॉल्यूम हम करेंगे वाटर के साथ जो 1 लीटर का होगा। सो ये सारे कंपोजिशन जो है वो 1 लीटर के लिए है। अब इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने यूज किया, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम टार्टरेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस चारों के अपनी सिग्निफिकेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट में भी कॉपर +2 आयन जो नॉर्मली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। पेप्टाइड बॉन्ड में भी स्पेशली नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड बनाता है कॉपर के साथ। दूसरा NaOH जो होता है वो रिएक्शंस की कंडीशंस को, एनवायरनमेंट को, सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाता है, बिकॉज रिएक्शन जो होगा वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही होगा। तो NaOH का काम है अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। रॉकेल साल्ट या सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो है वो चिलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे और भी टेस्ट में हमने देखा है, जहाँ बेनेडिक्ट टेस्ट में हमने देखा है, फेलिंग टेस्ट में देखा है, जहाँ चिलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं। तो ये चिलेटिंग एजेंट जैसे यूज करता है और ये स्टेबलाइज करता है कॉपर +2 आयन को। चौथा पोटेशियम आयोडाइड जो ऑप्शनल सम कंपोनेंट्स है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास लैब में नहीं है तो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसका काम होता है ये कॉपर के रिडक्शन को इनहिबिट करता है। रिडक्शन मीन्स कॉपर +2 से कॉपर +1 बनने को
रोकता है। तो अगर हम पोटेशियम आयोडाइड नहीं यूज करते हैं तो ये इजीली बन कन्वर्ट होंगे, रिडक्शन हो जाएंगे। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं तो रिडक्शन को स्टॉप करेगा। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, चारों कंपोनेंट जो हम बायूरेट रिएजेंट में यूज करते हैं। अब इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? तो नॉर्मली बायूरेट रिएजेंट में हम जो कॉपर सल्फेट यूज करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली जैसे यूज होता है, बेस जैसे यूज होता है। ये कॉपर प्लस सल्फेट मीन्स कॉपर +2 रिएक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड में भी नाइट्रोजन के साथ इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, एक कंपाउंड बनाता है वायलेट कलर का जिसको हम बोलते हैं बायूरेट कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का वो ब्लू होता है। अगर आपके पास आपके टेस्ट सॉल्यूशन में प्रोटीन्स पेप्टाइड्स बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो वो ब्लू कलर से कन्वर्ट हो जाएंगे वायलेट कलर में बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस बायूरेट कॉम्प्लेक्स। अगर पेप्टाइड बॉन्ड एब्सेंट है तो रिएक्शन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा वायलेट कलर में। कलर की इंटेंसिटी जो होती है इस वायलेट कलर की वो डिपेंड करता है कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। अगर ज्यादा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर कलर कम होंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स कम होंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस। NaOH के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, ये एनवायरनमेंट को एल्कलाइन करता है। चार नाइट्रोजन चाहिए होता है, चार अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड से जो कॉपर +2 के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। हम देखते हैं आगे कैसे बनाते हैं ये चारों रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायूरेट कैसे रिएक्ट करता है। तो ये यूरिया है। जब हम यूरिया को गर्म करते हैं 180 डिग्री पे तो ये हमें अमोनिया को निकाल करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं बायूरेट। ये बायूरेट 4 मॉलिक्यूल ऑफ बायूरेट का ये नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर होता है वो रिएक्ट करता है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ कॉपर। तो दिस इज वन बायूरेट, दिस इज अनदर बायूरेट, दिस इज थर्ड बायूरेट एंड दिस इज फोर्थ बायूरेट। तो हर एक बायूरेट का ये जो नाइट्रोजन है ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है जिसका कलर होता है वायलेट। तो कॉपर +2 जो ब्लू कलर का था वो उसका कलर हो जाता है वायलेट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिमिलर रिएक्शंस ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस जो होता है वो पेप्टाइड्स भी देता है। ये हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये डाइपेप्टाइड है जिसमें 2 अमीनो एसिड हमने ज्वाइन किया हुआ है। बट नॉर्मली आप हमने लिखा हुआ समझ कि ये चेन लंबा है। तो जब पेप्टाइड्स रिएक्ट करते हैं ब्लू कलर के कॉपर +2 आयन से इन अल्कलाइन कंडीशंस तो पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उस लोन पेयर के कारण ये नाइट्रोजन इस कॉपर के साथ +2 के साथ पेप्टाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और बनाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कलर होता है डीप पर्पल और वायलेट। अगर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वायलेट कलर मिलेगा। अगर ये पेप्टाइड नहीं प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा और वायलेट कलर नहीं बनेगा। तो कलर वायलेट कलर बनने से हमें पता चलता है कि पेप्टाइड्स हैं या नहीं है। रिएक्शन करेंगे कैसे, तरीका क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है? पहले हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब साफ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। एक में हम टेस्ट सॉल्यूशन डालेंगे, दूसरे में हम कंट्रोल डालेंगे, एग एल्बुमिन डालेंगे, एग एल्बुमिन कहने का मतलब कि प्रोटीन डालेंगे। तीसरे में हम डिस्टिल वाटर डालेंगे। सभी में हमने 1 से 2 ml ये सब रिएजेंट डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया, आइदर टेस्ट सॉल्यूशन का या एग एल्बुमिन का या वाटर का। सभी टेस्ट में हम 1 से 2 ml बायूरेट रिएजेंट डालेंगे, सबको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम आइदर वाटर बाथ में 37 पे डालेंगे या फिर रूम टेम्परेचर पे डालेंगे और उसके बाद हम कलर को ऑब्जर्व करेंगे, कलर फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो दिस इज द नॉर्मल कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर +2। ये ब्लू कलर कॉपर +2 आयन का होता है। अगर पेप्टाइड प्रेजेंट था इन द टेस्ट सॉल्यूशन तो वो कलर चेंज होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और जिसके कारण ये वायलेट कलर का सॉल्यूशन हमें दिखेगा। अगर ये कलर कन्वर्ट होता है इट मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड वाज प्रेजेंट देयर। अगर ये नहीं कन्वर्ट होता है, ये कलर रिटेन होता है, इट मीन्स पेप्टाइड वाज एब्सेंट देयर। अब इस रिएक्शन के लिए कुछ चीजें हमें याद करनी चाहिए, देखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। जैसे एडवांटेज जो इस मेथड का है कि इसकी टर्न अराउंड टाइम जो है वो बहुत कम होती है, रिएक्शन फास्ट होता है, 5 मिनट में आपको पॉजिटिव पता चल जाएगा। इसके बाद डिसएडवांटेज जो इस टेस्ट की है वो है इसकी लो सेंसिटिविटी और
अगर आपके रिएजेंट में अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है किसी तरह से एज ए इम्प्योरिटी, इट विल अफेक्ट योर रिजल्ट, इट विल इंटरफियर विद द कलर फॉर्मेशन, तो वो आपको एक ड्रॉबैक है। तीसरा, मिनिमम 2 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए होता है रिएक्शंस के लिए। एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा, वो आप नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो मिनिमम 2 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, जो आपने यहाँ देखा है कि मिनिमम हमको एक पेप्टाइड चाहिए जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होने चाहिए। अगर आपके पास एक ही पेप्टाइड बॉन्ड वाला डाइपेप्टाइड कंपोनेंट्स है तो वहाँ रिएक्शंस नेगेटिव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपने अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। Okay. And for finalize our talking, we must also see what's mean xanthoproteolytic reaction. The first we will see in this one. Aim: to detect presence of proteins by xanthoprotease test. Take 2 ml of protein solution, that is, milk or albumin of egg in a test tube. Add 1 ml of concentrated HNO3 solution. A white precipitate is formed. Boil the solution and the color changes to yellow. After solution attains normal temperature, add 2 ml of 20% NaOH to make it alkaline. Now the color changes to orange, indicating the presence of proteins. Okay, wonderful. And some more video about xanthoproteolytic test, because the xanthoproteolytic test, it's important test for also for some identification amino acids and for identification also for identification some proteins also. Let's Hello friends. see how it will be looks. Okay, we will check this like this one. Yes. Maybe some more. Okay, red test, green test. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Hello, welcome to my channel. Yes, this one. हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर पी के प्रभाकर पे आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है xanthoproteolytic टेस्ट। ये टेस्ट xanthoproteolytic टेस्ट एक ज्यादातर दूसरे We will be talking about all this video we will see, I think, from this one. बेंजीन रिंग है, एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है, इसीलिए ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव देते हैं xanthoproteolytic रिएक्शंस। ये जो है नॉन एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है, इसीलिए ये नेगेटिव रिएक्शन देते हैं।
इस टेस्ट की प्रिंसिपल जो क्या क्या है, नॉर्मली बेंजीन रिंग का एक प्रॉपर्टीज होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का, कि जब भी आप बेंजीन रिंग को गर्म करेंगे एसिडिक कंडीशंस में नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड NO2 ग्रुप्स ऐड करेगा उसके बेंजीन रिंग पे, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शंस। सो हमको जो मिलता है वो मिलता है नाइट्रो प्रोडक्ट, नाइट्रो डेरिवेटिव्स, नाइट्रो बेंजीन आप बोल सकते हैं। और नाइट्रो बेंजीन का कलर जो होता है वो येलो होता है। तो अगर हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिसमें बेंजीन रिंग है, उसको हम गर्म कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ऑब्वियसली नाइट्रिक बेंजीन रिंग जो होगा नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेटेड डेरिवेटिव्स बनेगा, और नाइट्रो बेंजीन जो होगा उसका कलर येलो होगा। इसीलिए जहां भी हमें बेंजीन रिंग वाले अमीनो एसिड्स होंगे वो हमें येलो कलर देंगे। अब टायरोसिन ट्रिप्टोफान के पास जो होता है वो बेंजीन रिंग जो होता है वो एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग होता है, इसीलिए ये हमें पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं। जबकि फिनाइलएलानाइन का जो बेंजीन रिंग होता है वो नॉन एक्टिवेटेड होता है, इसीलिए हमें वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब नाइट्रेशन रिएक्शन होता क्या है, ये एक नॉर्मल बेंजीन रिंग है जिसको हम गर्म कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ एसिडिक कंडीशंस में, तो ये हमें नाइट्रो बेंजीन बना जिसका कलर हमें होता है येलो, और इसी येलो कलर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा अमीनो एसिड्स है टायरोसिन, जिसको हम गर्म कर रहे हैं, सेम रिएक्शन हम कर रहे हैं टायरोसिन को एसिडिक कंडीशन में। यहाँ हम अलग से एसिडिक कंडीशन सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं कर रहे हैं, हमारा नाइट्रिक एसिड ही एसिडिक कंडीशन भी प्रोवाइड कर रहा है और नाइट्रिक एसिड ही NO2 ग्रुप भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन हो रहा है और इसका कलर हमें बनेगा येलो। हमें यहाँ नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन मिला। तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया कि टायरोसिन को हम गर्म कर रहे हैं विथ नाइट्रिक एसिड एंड वी आर गेटिंग ए नाइट्रो डेरिवेटिव दैट इज येलो इन कलर। सिमिलरली ट्रिप्टोफान में भी अगर हम ट्रिप्टोफान को हॉट करेंगे, हीट करेंगे विद द नाइट्रिक एसिड, तो हमें एक नाइट्रो डेरिवेटिव्स बनेंगे और दोनों का कलर होगा येलो। जबकि अगर हम फिनाइलएलानाइन के केस में जहाँ ये बेंजीन रिंग नॉन एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है वो रिएक्ट नहीं करता है, वहाँ नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होता है। नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होगा तो हमें नाइट्रो डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। अगर हमें नाइट्रो डेरिवेटिव नहीं मिल रहा तो हमें येलो कलर का प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ नेगेटिव रिजल्ट आती है। अब इस रिएक्शंस को करने के लिए हमें जो चाहिए, हमें एक टेस्ट सैंपल चाहिए होता है। वो हमें प्रोटीन हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकता है, फिर हमें चाहिए नाइट्रिक एसिड्स कंसनट्रेटेड फॉर्म में, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 40-40%, डिस्टिल वाटर, वाटर बाथ, ड्राई टेस्ट ट्यूब्स एंड पाइपेट्स। अब टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। एक हमारा टेस्ट वाले के लिए होगा, एक हमारा कंट्रोल के लिए होगा। टेस्ट में हम 2 ml टेस्ट सैंपल डालेंगे। टेस्ट सैंपल हमारा प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन का सॉल्यूशन हो सकता है, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है। कंट्रोल में हम डिस्टिल वाटर डालेंगे 2 ml। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम 1-1 ml कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। तो हमें 3 ml इसमें हो गया, 3 ml इसमें हो गया। दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम मिक्स करेंगे और इसको गर्म करेंगे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट गर्म करने के बाद इसको हम रनिंग वाटर में, टैप वाटर में कूल ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसके कलर को ऑब्जर्व करना है। अगर हमारे टेस्ट सैंपल में, बिकॉज इसमें तो डिस्टिल वाटर था, इसमें कोई कलर डेवलप होगा नहीं, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो ये क्लियर सॉल्यूशन होगा। हमारे टेस्ट सैंपल में अगर हमारा कलर डेवलप, अगर हमें येलो कलर मिलता है, इट मीन्स हम गेस कर सकते हैं कि इसमें हमें अमीनो एसिड्स टायरोसिन या ट्रिप्टोफान या फिर वो प्रोटीन जिसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान है वो अवेलेबल है। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, उसमें हम डालेंगे कुछ ड्रॉप्स 40% NaOH का। अगर NaOH के डालने से येलो कलर कन्वर्ट हो जाता है ऑरेंज में, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें हमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान या फिर प्रोटीन विद टायरोसिन ट्रिप्टोफान था। अब ये NaOH डालने से ऑरेंज क्यों हुआ, बिकॉज NaOH अल्कलाइन कंडीशन करेगा और अल्कलाइन कंडीशंस में वो हमें चार्ज फॉर्म देगा, आयनाइजेबल फॉर्म्स देगा नाइट्रो डेरिवेटिव्स का। तो आयनाइज फॉर्म ऑफ नाइट्रो डेरिवेटिव्स विल हैव ए ऑरेंज कलर, इसीलिए हमें यहाँ ऑरेंज कलर मिलता है। तो हमें कंफर्म होते हैं कि यहाँ टायरोसिन ट्रिप्टोफान अवेलेबल था। तो ये हमारा रिजल्ट होगा लास्ट में। जहाँ यह क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा तो ये हमारा नेगेटिव टेस्ट होगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा, जहाँ हमने वाटर के लिए स्टार्ट किया था। अगर हमारे पास कोई प्रोटीन्स हैं जिसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान हो या फिर सिर्फ एमिनो एसिड्स हो, तो हमें ऑरेंज कलर एंड येलो कलर मिलेगा। ऑरेंज येलो कलर विदाउट NaOH एंड ऑरेंज कलर विथ एडिशन ऑफ 40% NaOH। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करना चाहिए। पहला, ये टेस्ट जो है सिर्फ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में भी प्रेफरेबली इट विल बी गिवन बाय टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान ओनली बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग।
इट इज नॉट गिवन बाय फिनाइलएलानिन बिकॉज फिनाइलएलानिन के पास जो है एक्टिवेटेड नॉन एक्टिवेटेड बेंजीन होता है, एक्टिवेटेड बेंजीन का अभाव होता है। प्लस टायरोसिन ट्रिप्टोफान जो होता है वो ज्यादा पोलर कंपाउंड्स होते हैं कंपेयर टू फिनाइलएलानिन, इसीलिए टायरोसिन ट्रिप्टोफान इजीली देते हैं रिएक्शंस, फिनाइलएलानिन नहीं देते हैं, नेगेटिव देते हैं। अगर हमारे स्किन पे नाइट्रिक एसिड गिर जाता है तो हमारा स्किन का कलर येलो हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि हमारे स्किन में प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स में टायरोसिन ट्रिप्टोफान होते हैं। जब नाइट्रिक एसिड गिरा हमारे स्किन पे तो हमारा वो प्रोटीन जिसमें टायरोसिन ट्रिप्टोफान है उसने नाइट्रेशन रिएक्शंस वहाँ हुआ और नाइट्रेशन रिएक्शन के कारण हमें नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बना जिसका कलर होता है येलो। तो नाइट्रिक एसिड गिरने के बाद स्किन का कलर येलो हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रेशन रिएक्शंस। तो ये एक लाइफ टू लाइफ का एग्जाम्पल हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Okay, any questions? Oh, no, sir. Okay, if you have no questions, I think for today we can finalize our class. And before finalize our class, we must check attendance for your group. Yeah, and for this reason, I have specific Excel list and this one. And list of students. Sir, 2 to 3 students have internet issue, sir. That's why he can't join the class. Yes, but sorry, but I must to check attendance. If 3 students here, it's wonderful, but we must to identify these 3 students, yeah? Because in next time I will use this result of your attendance to our Sir, inshallah, next practice class, all are present, sir. wonderful, I hope so. wonderful, but let's check. Okay. Muhammad Saad, are you Yes, here? sir. Yes, sir. Wonderful. Saad Sohail. Yes, sir. Okay. Yes. Malik, absent. No, sir. Malik's also present, sir. Malik. Where Malik? Malik Saad, I'm right here, sir. But why you with this Saad? Malik Saad sorry, it's just my mistake. I'll change Ahmad, my name. yes, Ahmad Umair, absent. Ali Wakar, Yes, sir, present. yes. Hamza Amir, absent. Anwar Shikhar. Anwar, are you here? Anwar. Yes, sir. She's present, sir. But I want to hear voice from Anwar. Because without voice, it will be absent. Aslam Talha, absent. Fida Usama, absent. Ashti Ali,
Ashti Ali, absent. Yehna Ahmad, absent. Anwar, are you here? Anwar. Okay, today Anwar will be present for me, but if the next time somebody not will be answer me, it's mean absent, okay? Oh, okay, sir. Okay, then today have a nice end of this day and come back to next our lectures and practicum class, okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you and take care Good of luck. yourself. Okay, sir. Dasvidaniya, sir. Dasvidaniya. Dasvidaniya, sir. Mhm.